الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے جیسے بیت اللہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، تو اس کی یہ ایک تشریف کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا شرف بیان کرنے کے لیے، تو اس کے آنر کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے بندے جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے، یہ اس کے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ تو انسان جتنا بھی اونچا چلا جائے وہ عبد ہی رہتا ہے، وہ یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ اللہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کے برابر کہیں ہو گیا یا ایسی کوئی مقام پہ پہنچ گیا، وہ عبد ہی رہے گا، وہ کہاں تک بھی چلا جائے۔ ٹھیک ہے، عبد من عبادنا آتینہ رحمت من عندنا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے رحمت دی۔ رحمت کا مطلب کیا؟ جن کا خیال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے تو وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد یہاں پہ نبوت ہے۔ ٹھیک ہے، جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور کئی انعامات ان کے اوپر تھے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کو بھی اپنی رحمت فرمایا ہے، جیسے الرحمن علم القرآن ہے نا، قرآن سکھایا رحمان نے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا اس کو اپنے پاس سے علم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھایا، ان کا بھی کوئی علم اپنا نہیں کوئی کمال تھا، اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ یہیں سے من لدنا جو ہے نا، یہیں سے انہوں نے بنا دیا علم لدنی، کہ ہمیں بھی علم لدنی ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اور یہ علم کی ایک قسم ہے۔ آپ کبھی سنا ہوگا شاید آپ نے۔ اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ جب گئے تو وہاں پر ان دونوں کو، یعنی یوشع علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام ملے، جو کہ بیٹھے ہوئے تھے ایک چٹان کے پاس، اور ان کے سر پہ کپڑا تھا، جیسے ہوڈ آپ سمجھ لیں، ہوڈ لیا ہوا تھا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کے ان سے فرمایا السلام علیکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے پیغمبروں میں بھی سلام ایز گریٹنگ تھا، بلکہ یہ آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات سکھائی ہے وہ یہ سلام کرنا ہی سکھایا۔ فرمایا جاؤ جا کے فرشتوں کو سلام کر کے آؤ، اس طرح سے سلام کرنا، اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتے۔ جب انہوں نے واپس جواب دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے گریٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے سلام اس وقت سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے کہا اس زمین پہ سلام، اس زمین پہ سلام، یعنی اس ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے اوپر تمام لوگ مشرک ہیں، تو انہوں نے کہا سلام کہاں سے آ گیا یہاں پہ کہ کوئی سلام کرے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اس زمانے کے اندر سلام کرتے تھے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے تھے کہ میں فلاں ہوں، تو انہوں نے کہا یہ کیسا سلام ہے، یعنی آپ نے اپنا انٹروڈکشن تو نہیں کرایا۔ تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا نام تھا، اتنی پہچان تھی کہ وہ ان کو پتا تھا ان کا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ خضر علیہ السلام سے اوپر کا تھا، یہ یاد رکھیے بات۔ بھلے کہ ان کے پاس علم تھا لیکن جو درجہ ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا بلند ہے، کیونکہ اگر خضر علیہ السلام نبی ہیں تب بھی وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں، اگر وہ فرشتے مان لیے جائیں تب بھی فرشتے جو ہیں وہ انبیاء سے تو انسان سے تو
नीचे ही हैं, क्योंकि वो इंसान को सजदा कराया गया फरिश्तों के जरिए। अच्छा, अब जब उनको ये इल्म अल्लाह ताला ने कोई खुसूसी इल्म इनको अता फरमाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनको ऐसे गैब के उलूम में से इल्म दिया गया, मगर ये याद रखिए कि उनको कोई कुल्ली इल्म नहीं था। इसलिए कि अगर उनको कुल्ली इल्म होता तो वो क्यों पूछते कि आप कौन से मूसा, बनी इसराइल के मूसा हैं आप? मूसा अलैहिस्सलाम को इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत ही क्या होती? जैसे आज वो ऐसे फ्रॉड किस्म के लोग बैठे होते हैं, कहते हम आपका मसला हमें तो पहले ही पता है, आपका नाम ये है, आपका मसला ये है। असल में उन्होंने जिन्नात उनके कब्जे में होते, जिन्नात लोगों के पीछे लगा देते हैं, वो उनके नाम वारा पूछ आके इनको बता देते हैं। आप कहते हैं इतने इंप्रेस हो जाते हैं, इनके पास पता नहीं कौन सा इल्म है। तो ऐसे लोग गलत ही होते हैं। तो अब वो ये इसलिए ये बात यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है कि ये ना हो कि आप ये समझे कि इनको पता नहीं पूरा ही इल्म गैब था तो सारी चीजें इनको पता थी, बल्कि अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने अपने पास से उनको इल्म अता फरमाया था। तो कुछ हिस्से, और यहां से भी हमें पता चलता है कि इल्म की बात बाद में आई है और रहमत की बात पहले आई है। क्यों? इसलिए कि रहमत अल्लाह ताला की हो और फिर इल्म आए, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। अगर रहमत है इल्म नहीं है फिर भी गुजारा चल सकता है, लेकिन अगर इल्म आ जाए और रहमत ना हो तो ये इल्म, मैंने बताया ना आपको, आफत बन जाता है। ये इल्म एक मुसीबत बन जाता है, क्योंकि इंसान फिर अल्लाह की रहमत ना हो तो इल्म हासिल करने के बाद तकब्बर में मुब्तला हो जाता है। उसी इल्म को लेकर वो लोगों को गुमराह करने लगता है। तो अल्लाह ताला की रहमत के साथ ही इल्म भी फायदामंद है। तो हमने उनको रहमत भी दी और इल्म भी दिया। तो अल्लाह ताला की रहमत ही है कि इल्म इंसान को फायदा देने वाला बन जाए, इल्म नाफे बन जाए, क्योंकि उलूम भी तो बहुत किस्म के होते हैं ना, आगे बात आएगी। क़ाल लहू मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हल अत्तबिउका, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, इस पे इस बात के ऊपर कि आप मुझे सिखा दें जो आपको सिखाया गया रुश्द में से। बहुत सारी बातें इसके अंदर समझने की हैं। सबसे पहली बात है, इसमें आपको अदब पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम आई हैं तो अब ये नहीं आके कह रहे कि आप बस मुझे सिखा दें, जैसे कोई हुक्म दे रहा होता है, आप सिखाएं ना हमें, अगर हम इतनी दूर से आए हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, इतने हम थके हुए हैं, बस जल्दी जल्दी सिखाएं, बस 2-4 दिनों में मुझे सिखा के फारिग करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने जाके अपनी कौम भी देखनी है। ये रवैया या हल अत्तबिउ का एक रिक्वेस्ट है और एक इजाजत मांग रहे हैं। क्या मैं करूं? ये नहीं कि मैं अब आपके साथ चलूंगा, मैं बस आपके साथ चलूंगा, मुझे पता चला आपके पास बड़ा इल्म है तो बस मैं चलूंगा आपके साथ। नहीं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूं? उलमा ने इस बात को लेकर फरमाया कि इत्तबिउ का इसका मतलब यह है फॉलोइंग करना। और फॉलो कब किया जाता है? जब किसी की इताअत की जाए, किसी को की बात मानी जाए। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज इल्म हासिल करने से भी पहले ये चीज है कि इंसान इस पे कमिटेड हो कि वो अपने उस्ताद की बात को मानेगा। ये नहीं है कि बात नहीं हमने माननी, ऐसा आप इल्म सिखाएं और हम जा रहे हैं। और आज तो रवैये ये होते हैं कि इंसान, लोग आते हैं इल्म सीखने के लिए, लेकिन हाल ये होता है उनका कि बस आप सिखाएं हमें, बस अब मतलब जल्दी जल्दी आप हमें पढ़ा दें, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। और फिर दूसरी, हमने आपकी क्या बात सुननी है या माननी है। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ना कि मैं आपको पैरवी करूंगा, फॉलो करूंगा। फॉलोइंग होती ही इताअत के साथ है, यानी मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा, आपके साथ साथ रहूंगा। और इसमें उलमा ने एक और माना भी किया कि मैं आपकी खिदमत करूंगा।
इस पे कि आप मुझे तालीम दे, इसमें से ये भी माना निकाला है। तो आज क्या ये जो मैं आपको हाल बता रही हूँ वो ये है कि आप आज आके जो स्टूडेंट आते हैं उनके रवैये होते हैं, उस्ताद को कहते हैं कि आप हमारी बात माने, हमने तो आपकी बात क्या माननी है, आप हमारी बात मानेंगे ये तो फिर हमने पढ़ाई करनी है, वरना मैं कोर्स छोड़ के जा रही हूँ। यानी धमकियां देते हैं, मैं तो नहीं फिर पढ़ सकती, आप ऐसा करें, पहले हमारा ग्रुप ये करें, पहले हमारे ये करें, पहले आप स्लो पढ़ाएं, पहले आप तेज पढ़ाएं, पहले आप इतनी देर में खत्म करें, यहाँ से हर एक की अपनी मर्जी है ना। वरना टीचर ने क्या स्टूडेंट को फारिग करना है, स्टूडेंट कहते हैं हम आपको फारिग कर देंगे, इतना प्रेशर देते हैं उस्ताद के ऊपर। ये तो इसीलिए तो इल्म की देख लेना आज कोई हाल नहीं है, पढ़ पढ़ के भी कोई हाल नहीं है, क्योंकि कोई कदर नहीं है, ना इल्म की कोई कदर है ना इल्म वाले की कोई कदर है। आज इस इल्म की इसलिए वैल्यू नहीं कि जो कहते हैं तो बस मुफ्त में ही मिल रहा है ना, इसलिए मुफ्त चीज की वैल्यू नहीं। जहां पे पैसे देने पड़े वहां पे भी थोड़े सीरियस हो जाते हैं, मगर इसलिए नहीं कि हमको इल्म की कदर होती, इसलिए कि यहाँ पे पैसे दिए हैं, फिर बार बार कहते हैं हाँ इतनी फीस दी हुई है ना तो क्लास में तो जाना ही चाहिए। वहां पे भी पैसों की वैल्यू है। तो यहाँ पे अदब, एक स्टूडेंट को कैसा बाअदब होना चाहिए वो बताया गया है कि वो उस्ताद के सामने अपनी ओबीडियंस का इजहार करे। मैं आपके साथ आपको फॉलो कर सकता हूं। और मूसा अलैहिस्सलाम की हम्बलनेस आप देखें, उनकी आजी देखें, थके हुए हैं फिर भी ये कह रहे हैं, फिर भी उनसे इजाजत चाह रहे हैं, फिर भी कोई धूस नहीं है, फिर भी कोई धमकी नहीं है। हालांकि देखिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे पास अलग इल्म है जो आप नहीं जान सकते, और आपके पास एक इल्म है जो मैं नहीं जान सकता। दोनों अलग अलग इल्म के मालिक थे। मैंने आपको बताया ना, उनके पास अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल इल्म दिया हुआ था। तो ना मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्म को लेने आए हैं, वरना ऐसा नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपने पास कोई इल्म नहीं। तो चाहे बंदे का अपना इल्म कितना ही हो, मगर जब इल्म लेने का वक्त आए तो आजी जरूरी है। याद रखिए, जब आप देखिए एक बर्तन है ना, जब आपने उसमें पानी लेना है तो बर्तन को नीचे होना पड़ता है, और जिस बर्तन से पानी लेना है उसको ऊपर लाजमी होना पड़ेगा। अगर जिस बर्तन से आपने पानी लेना है उसको नीचे कर देंगे और खाली बर्तन ऊपर कर देंगे तो क्या कभी पानी उसमें आ सकता है? नहीं आ सकता। उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर पानी आ सकता है। तो ये बातें सोचना कि मैंने तो आजी की क्या जरूरत है, ये हमारे लिए आजी करे ना, ये हमें इस तरह से बताएं, ये हमारे लिए सारा कंफर्ट का इंतजाम करें, इनको हमारी बात माननी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। और तकब्बुर के साथ इल्म नहीं आना कभी भी। और यहां से उलमा ने एक और बात निकाली है। उन्होंने कहा कि देखो, बेस्ट तरीका इल्म हासिल करने का यह है कि किसी उस्ताद से इल्म हासिल किया जाए। यहां पे वो उस्ताद के साथ रहने को कर रहे हैं। ये सोच कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के, बाज लोग कहते हैं ये घर में हम इतनी तफसीरें हमारी पढ़ी हुई, हम वो पढ़ते रहते हैं, बस हमने आगे क्यों सीखना है। याद रखें, जो लोग घर में तफसीरें किताबें पढ़ पढ़ के समझते हैं ना कि हम आलिम बन गए, कभी सही इल्म नहीं हासिल कर सकते, वो ठोकर खा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती, छोटी सी, और बेशुमार मिसालें हमारे उस्ताद कराम बहुत मिसालें दिया करते थे। एक मिसाल मेरे सामने आई कि किसी ने कहा कि हमने इमाम नूई की बुक पढ़ी है। इमाम नूई कौन? इमाम नूई, पता चला इमाम नववी को कह रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं, पता ही नहीं कैसे, जाहिर है किताबें पढ़ पढ़ के देख लिया। तो इसी तरह बाज दफा सिर्फ किताबें पढ़ने से ऐसे होता है कि इंसान कहा कुछ गया होता है, समझ कुछ और लेता है। कौन वेरीफाई करेगा कि आपने सही समझा कि नहीं? दूसरे इंसान को ये नहीं पता होता कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। और आप देखें किसी और फील्ड में ऐसे नहीं है। आप मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं पे भी ले लें,
कोई मेडिकल की किताबें घर में पढ़ पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाता, लेकिन दीन का इल्म क्या इतना फारिग है कि इसके लिए ना किसी उस्ताद की जरूरत है, ना सीरियसनेस की जरूरत है, ना स्टूडेंट बनने की जरूरत है। बस हम समझते हैं ऐसे ही बस बर्तन धोते, गाड़ी चलाते, टीवी देखते या व्हाट्सएप के ऊपर बस थोड़ी वीडियोस देख के बहुत बड़ी मुझे इल्म की बातें आ गई हैं, मुझे तो दीन का सारा इल्म आ गया, हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, सब पता चल गया हमें। गूगल के ऊपर कर करके देख के तो चलो चीज मसलों के हल निकाल ली। तो क्यों नहीं आप ऐसे करते कि अगर कभी बीमार हो तो दवाइयां भी यहीं से गूगल से पूछ के ले लिया करें, क्यों डॉक्टर के जाते हैं? फिर आप देखें यहाँ पे अला अन तो अलिमन नी था, नी, लेकिन यहाँ पे या गिर गई, क्यों? उलमा कहते हैं इतना प्यारा नुक्ता है इसमें भी कि मूसा अलैहिस्सलाम इतने एक्साइटेड थे सीखने के लिए, इतने बेचैन थे सीखने के लिए कि तो अलिमन नी भी नहीं कहा, बस तो अलिमनी मिम्मा अल्लिमता रुशदा नहीं, वो बस बीच बीच जा रहे हैं और बेचैन है कि बस मुझे सिखा दें किसी तरह। सुभान अल्लाह, उनका शौक, उनका जज्बा, उनकी कमिटमेंट देखें तो सही। और किसमें से? उल्लिमता रुशदा, रुश्द में से। रुश्द क्या होती है? सही फैसला करने की सलाहियत, समझ बूझ, रास्ती, हिदायत, खास इल्म है। इल्म का लफ्ज नहीं आया यहाँ पर, रुश्द का आया, जिसमें भलाई हो, क्योंकि उलूम बहुत सारे हो सकते हैं। और यहां से इल्म का लेने का अदब भी हमें आया। अदब क्या होता है? क्योंकि इल्म का भी अदब होता है। इमाम शाफी ने इमाम मालिक से इल्म लिया, फिर उसके बाद जब इल्म ले लिया, हालांकि मोता इमाम मालिक उनको याद थी इमाम शाफी को, जब अब ये पढ़ने के लिए आए थे ना, उनकी अम्मी उनको लेकर आई इमाम मालिक के पास, तो उन्होंने पूछा भाई कुरान हिफ्ज है, ये है, तो सब हिफ्ज है, ये है, अशार भी कई आते थे। और उन्होंने कहा कि मेरे क्रेडेंशियल सबसे बड़ी तो बात ये कि मुझे मोता इमाम मालिक जो है मुझे जुबानी याद है। और फिर उसके बाद वहीं बैठे, फिर कई साल इल्म लिया। जब इल्म ले लिया तो लोगों ने, बाकी लोग तो चले गए, उन्होंने कहा कि आप क्यों ठहरे हुए हैं अभी तक, आप क्यों अभी तक पढ़ना चाहते हैं, आपने इल्म ले तो लिया। फरमाया कि अब मैं इल्म का अदब सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं इल्म का अदब सीख रहा हूँ। इल्म अदब के साथ ही आता है। देखिए वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर आपके नजदीक टीचर की कोई अहमियत नहीं है ना, कोई हैसियत नहीं, वो आपको ऐसे लगता है ये क्या चीज है, इससे ज्यादा तो मुझे ही पता है, तो यकीन जाने आप 100 साल भी उस उस्ताद से सीखते रहेंगे, आपको नहीं आएगा इल्म, नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख के बता दूं। इल्म के लिए, इल्म जिससे आप लेते हैं उसके अदब जरूरी है। जहां पे भी आप जाएं, किसी किस्म का भी इल्म लें। और इतने बड़े पैगंबर भी अपने आप को कैसे उनके सामने बिछा रहे हैं, कैसे उनके सामने वो आजी का इजहार कर रहे हैं। और कहते हैं मिम्मा उल्लिमता रुशदा, मिन ये तबईजिया है, बाज उसमें से जो इल्म आपको सिखाया गया, यानी जो आपको सिखाया गया उसमें से, यानी एक इसका मतलब ये कि ये नहीं मैं कह रहा कि सारा कुछ ही मुझे इल्म दे दे, बस अब मुझे अपने जितना इल्म सिखाएं जितना आपके पास है, नहीं, इसमें से मेहरबानी करके मुझे कुछ तो इल्म दे दीजिए। ये कितनी अदब की इसमें बात है। दूसरा ये कि जैसे अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये इनाम फरमाया कि आपको सिखाया, तो आप भी मेरे साथ मेहरबानी करें कि आप मुझे सिखा दें। और देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी सिर्फ कि मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा तालिब इल्म बना दिया। नहीं, जाओ अभी और सीखना है तुम्हें। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका इल्म मुकम्मल हो। मैंने जैसे आपको बताया खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जो इल्म है वो आपके पास नहीं है, मैंने मेरे पास नहीं है वो, और ना आपके पास जो इल्म है वो मेरे पास है, ना मेरे पास जो इल्म है वो आपके पास है। तो इसलिए
कोई भी मुकम्मल नहीं। आपके पास कितना भी इल्म हो, फिर भी सीखने की और हर एक को जरूरत है। सूरह यूसुफ में हम पढ़ नहीं रहे कि पढ़ा है हमने कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। तो इसलिए कभी अपने आप को ना सोचें कि मैं बहुत बड़ी आलिमा बन गई, मैं आलिमा, मैं फाजिला, मैं पता नहीं किया। बहुत सारे लोग तो अपने आप को आलिम कहलाते हैं, आलिमाएं कहलाती हैं। तो ऑलवेज इंसान को तालिब इल्म रहना चाहिए। और फिर ये बात भी उलमा ने कही है कि इल्म जो है ना, सीखना भी एक चीज और सिखाना एक और चीज है। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो अपनी कौम के अंदर इल्म सिखाते रहते, ना आते, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ के इल्म सीखने को अब ज्यादा तरजीह दी कि मैं सीखने जाना चाहता हूँ। वरना सिखाने वाले भी तो बन सकते थे, वहीं पे सिखाते रहते बस। और इससे पता चलता है, और लिमता रुशदा से पता चला ना कि ऐसा खास इल्म जो भलाई का इल्म हो, जो नफामंद इल्म हो, जो रास्ती वाला इल्म हो। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है ना मसनून दुआओं में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन, अल्लाह मुझे नफामंद इल्म अता फरमा। क्योंकि बाज़ दफा इंसान ऐसे उलूम भी हासिल करता है जिनको कोई नफा नहीं है, ना दुनिया का कोई फायदा तो ना आखिरत का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म सीखो, और इल्म सीखने के लिए सकीनत और वकार इख्तियार करो। ठहराओ यानी अपने मिजाज में ठहराओ लाओ, और तवाज़ो इख्तियार करो यानी आजिज़ी का मुजाहिरा करो। यह हदीस है। तो तवाज़ो के बगैर कैसे इल्म आ सकता है? उन्होंने क्या फरमाया? क़ाला, उन्होंने फरमाया, किसने? खिज़र अलैहिस्सलाम ने, इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा, कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। इससे पता चला कि बाज़ दफ़ा उस्ताद देख के ये भांप लेता है कि ये शागिर्द जो है ना, ये वाला इल्म नहीं हासिल कर सकेगा, या वो या शायद बास मुफस्सिरीन ने कहा कि शायद खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसलिए ये फरमाया कि वो देखना चाहते थे मूसा अलैहिस्सलाम कितने कमिटेड है, या उनको पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास शरीयत का इल्म है और खिज़र अलैहिस्सलाम कई ऐसे काम करेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में मना है, तो फिर वो सब्र नहीं कर सकेंगे। जैसे आप देखिए ना, मूसा अलैहिस्सलाम जब वो किब्ती के साथ वो बनी इस्राएली शख्स लड़ रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे खड़े हो गए, उस लड़ाई में कूद पड़े वो, उन्होंने बीच बचाव की कोशिश शुरू कर दी। उनसे देखा नहीं जा सकता था कि कोई चीज गलत हो रही है तो वो मतलब उसके अंदर ना जाए और ना कुछ बोले, तो उनसे कैसे सब्र होना था? उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे सब्र नहीं हो सकेगा। और इससे हमें ये भी पता चला कि इल्म के लिए दूसरी क्या चीज जरूरी है? सब्र। अभी तक आपको इल्म के क्या आदाब पता चले? अपने किसी उस्ताद से इल्म सीखना, ये भी पता चला कि उस्ताद की ओबीडियंस करना, कि जो वो बात कहे उसको मानने तो सही, ये नहीं कि हमने नहीं माननी। ये भी पता चला कि इसके अंदर इल्म नाफे के लिए इल्म तलब करना, और फिर इल्म के लिए तवाज़ो इख्तियार करना, आजिज़ी करना, वो इजाजत ले रहे हैं बड़ी रिस्पेक्टफुली। और फिर ये कि सब्र। अगर आप कहें कि मैं पहले दिन ही आई हूं, मुझे सारा कुछ सिखा दें, तो नहीं हो सकता। जो हमारा पहला कोर्स था उसमें आज तक मुझे याद है, हमने सूरह फातिहा शुरू की तो स्टूडेंट से इतने, उसके बाद सवाल जवाब का जब सेशन हुआ, इतने सवालात पूछे, अच्छा ये बताएं कि ये क्या होता है, वो बताएं, वो यानी वो अभी बात आई नहीं, अभी सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह चल रही है, वो बनी इसराइल का पूछ रहे हैं, उनका पूछ रहे हैं। तो इल्म सब्र के साथ आता है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, जब कोर्स शुरू होता है कि आप लोग अपने सवालात एक जगह लिख लें, जब कोर्स खत्म हो जाए तो आप देखें कि आपके उन सवालात के जवाबात आपको मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ना, उसके लिए आपको सब्र करना पड़ा, इतनी अरसा पढ़ना पड़ा। और अगर कहें कि भाई आज ही बस हलवा बना के हमें खिला दें और एक दिन में ही हमें बस सारा आ जाए
اور بس ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں اتنا صبر کر سکتے، یہ نہیں پھر علم آئے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کریں گے بھی کیسے؟ اب وہ ان کو خود ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ آپ خود کیسے صبر کریں گے اس بات پہ جس کی آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اس کی پوری خبر کا، اس کی پوری سمجھ کا. یعنی ایک چیز کے کئی اینگلز ہوتے ہیں نا، تو آپ احاطہ نہیں کر سکیں گے. آپ ایک سائڈ سے دیکھیں گے وہ آپ کو غلط لگے گی، تو اس کے اوپر پھر آپ صبر کیسے کریں گے؟ تو ہے تو بھی یہی اس کا بڑا ایک سگنیفیکینس ہے یہاں پہ. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر جو آپ کو پتا نہیں ہے، نہیں، احاطہ نہیں جس کا آپ کر سکتے، آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کی. پوری انڈرسٹینڈنگ تبھی ہوتی ہے جب ہر اینگل سے چیز کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے. ہم دنیا میں صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں نا، اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے باطن میں چھپی ہوئی چیز نہیں سمجھ آتی، لیکن وہ بھی اس کا ایک اینگل ہے نا. تو یہ بھی ایک اچھے استاد کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے شوز میں آ کے دیکھے کہ اس کے کیا مسئلے ہیں، اس کو یہ کیا کس چیز سے دو چار ہو سکتا ہے، کس پریشانی سے دو چار ہو سکتا ہے. تو اس کی مشکل کو سمجھ کے پھر اس طرح اس کو ایڈریس کرے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا تم کہاں صبر کرو گے، کہاں تمہارے اندر اتنا صبر ہے. بعض لوگ اس طرح اسٹوڈنٹس کو پٹ آف کر دیتے ہیں کہ جب وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہارش ہوتے ہیں، جب ان کو کہتے تمہیں کہاں آئے گا، تم نہیں صبر کر سکتے، ارے کہاں تم سے صبر ہوگا، چھوڑو تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے. ایسے نہیں کہا، بلکہ آئی انڈرسٹینڈ، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ تم صبر کر رہے ہو کہ بھئی کیسے، تمہاری طاقت میں ہی نہیں ہوگا کیونکہ تمہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ان چیزوں کی. اب موسیٰ علیہ السلام تو ڈٹرمنڈ ہے کہ میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے واقعی اگر اتنا ہی مشکل کام ہے تو بھائی میں تو جا رہا ہوں واپس. اچھا اتنا مشکل ہے، اس میں اتنا صبر کرنا پڑے گا، بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا. بہت لوگ کہتے ہیں نا اچھا یہ بھی پڑھنا پڑے گا، اچھا ترجمہ بھی یاد کرنا پڑے گا، یہ تو نہیں ہم سے ہو سکتا. بھائی ٹھیک ہے، ہم تو نہیں، ہم سن لیں گے لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے، کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، بھائی اسٹوڈنٹ کے طور پہ نہیں آ سکتے، مجھے اسٹوڈنٹ ہی بن رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہتے تو کیا ہوا، میں نے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے نا، واچ ہی کرنا ہے نا، واچ اینڈ لرن ہی کرنا ہے، اس میں صبر کی کیا بات ہوگی. نہیں، وہ آگے سے اپنی پوری فل کمٹمنٹ دکھاتے ہیں، یعنی اپنے استاد کو وہ خوش کر دیتے ہیں یہ کہہ کے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، میں انشاءاللہ، یعنی اپنے اوپر بھروسہ کر کے نہیں، اللہ نے اگر چاہا تو میں صابرہ جو ہے نا وہ اسم فاعل ہے، اس میں بہت زیادہ صبر، یعنی جو انسان صبر ہی کرنے والا، صبر کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، وہ کرنے والا ہوں، تو میں آپ کو صبر کرنے والا ملوں گا، یعنی آپ مجھے ایسا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی تو کروں گا ہی نہیں، کسی حکم میں بھی نہیں. آپ دیکھیں فرما برداری کی بات سمجھ آئی نا. کون کہہ رہا ہے؟ یوشع بن نون نہیں کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وہ تو ہوتے تو پھر بھی چلو، ایک نوجوان تھے اور ایک لڑکے تھے، ان کے خادم تھے، اتنے بڑے پیغمبر. اب تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے میں نے آپ کو شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کرائی، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کی، کہ کتنی بڑی ہستی ہے موسیٰ علیہ السلام، اور جس کے ساتھ زمین پہ اللہ تعالیٰ خود بات کر لے. ہم بتائیں گے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، وہاں پہ کلام کیا. اس زمین پہ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بات نہیں کی. وہ موسیٰ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی کوئی بات رد نہیں کروں گا. تو اس سے استاد کی تعظیم، ان کا ادب، ان کے سامنے کیسے ایک شاگرد کو ہونا چاہیے، وہ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. اصل میں آج کے دور میں ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہو سکتا. سارے کہتے ہیں ہمیں یہ کیا چیز ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. مجھے سارا کچھ پتا ہے، میں نے کیوں کسی سے پڑھنا، یا چلو پڑھ بھی لیتا ہوں لیکن اتنا بھی کیا. حالانکہ
हज़रत अली फरमाते हैं ना कि जिससे मैंने एक लफ्ज भी सीख लिया मैं उसका गुलाम हूँ, एक लफ्ज भी। सुभान अल्लाह। तो और यहाँ पे देखिए इंशाअल्लाह कहते हैं, इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह को हमने इस सूरत में पहले भी देखा कि जब किसी काम का इरादा करो तो इंशाअल्लाह को, और यहाँ प्रैक्टिकली बता दिया गया कि अल्लाह के पैगंबर भी इंशाअल्लाह कहते थे। काला, अब उन्होंने एक शर्त रख दी खदिर अलैहिस्सलाम ने, फ़इन इत्तबअतनी फला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। उन्होंने कहा फिर अगर तुम मेरी पैरवी करते ही हो तो फिर देखना मुझसे कुछ सवाल ना करना किसी चीज के बारे में, जब तक मैं तुम्हें खुद ना बयान कर दूं, इसका खुद ना जिक्र कर दूं। यानी मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, ये मेरी शर्त है मेरे साथ रहने की कि आपको ये करना पड़ेगा कि आप बीच बीच में मुझसे नहीं पूछेंगे। देखिए ना, आप खुद भी वैसे भी देखें कोई भी कोई काम कर रहा हो, मसलन अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, अब आप बीच में अगर सवाल करना शुरू कर दें तो क्या लेक्चर मुकम्मल हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता ना। तो अब उन्होंने कहा कि आपने मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, यही उनकी एक ही शर्त थी। और इससे पता चलता है कि उस्ताद कोई शर्त रख सकता है अपने पढ़ाने के लिए, मसलन है कि आप होमवर्क करके आया करेंगे, आप ये किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, फन तलाका, तो वो दोनों चल दिए। कौन दोनों? मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन खदिर अलैहिस्सलाम। अच्छा, यूशा कहाँ गए? अब बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनका जिक्र इसलिए नहीं कि मेन कैरेक्टर्स ये हैं और ये चले तो वो तो बस वैसे ही पीछे थे ना, उनकी तो नहीं है कहानी। लेकिन बाज कहते हैं कि नहीं, उनको वहीं पे छोड़ दिया और ये दोनों आगे गए क्योंकि इन्होंने उनसे सीखना था ना, तो उनको वहां पे छोड़ा उन्होंने और ये आगे चल दिए। अच्छा, हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीनती, यहां तक के दोनों सवार हो गए कश्ती में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।